Good afternoon, students. How are you all? I hope all are good, all are watching the videos properly, all are studying properly. Please, beta, watch videos properly, learn properly. We are going to learn like this only for some more months. So, concentrate on your work for all the subjects, okay? And reading is also very important. Every day make a habit of reading at least one paragraph of all subjects, Hindi, Gujarati, English, ENV, everything. Okay? Chalo. Now we'll talk about this video. We have already completed chapter number 6. So matlab explanation is over. Today I am going to give you the exercise of this chapter which you have to write. Fill in the blanks, true or false, that you have to write in your textbook also and one time in your classwork book also. All these exercise you will write one time in your ENV classwork, as well as whichever exercise are there in the textbook, that also you will complete. Okay, chalo, we'll start with the buzzword. Chapter 6, the world of animals, buzzwords. First, predator. What do you mean by predator? An animal that kills and eats other animal. एनिमल जो दूसरे एनिमल्स को किल करके खा जाते हैं उसको हम प्रीडेटर्स कहते हैं. सॉलिटरी, टेंडिंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम अलोन, जो अपने आप में अकेले रहना पसंद करते हैं ना, जो एनिमल्स अकेले रहना पसंद करते हैं उसको हम सॉलिटरी कहते हैं. कॉलोनी, a group of animals of the same types that lives in the same area. एक जैसे एनिमल्स, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो एक जैसे ही होते हैं और एक साथ में रहना पसंद करते हैं. जैसे एक ग्रुप ऑफ टाइगर, ग्रुप ऑफ लायन, ग्रुप ऑफ बीस, वो सबको हम कॉलोनी कहते हैं. ट्यूबुलर, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब लाइक, जो टंग होती है उसका शेप कैसा होता है, ट्यूब कैसी है, ऐसे ना सिलेंडर से शेप की, उस सब को हम ट्यूबुलर कहते हैं. मरीन, लिविंग इन द सी, जो भी क्रिएचर्स सी के अंदर कहते हैं वो क्रिएचर्स को, वो एनिमल्स को हम मरीन एनिमल्स कहते हैं. ओके, सो राइट दिस buzzwords in your classwork book. Now the second question is fill in the blanks. This you have to write one time in your classwork as well as in your textbook. First, the animals stay from their predators if they move in a large groups. Animals सेफ रहते हैं, अपने प्रीडेटर से सेफ रहते हैं अगर वो एक बड़े से ग्रुप में साथ में रहते हैं तो. The leader of the group look after the safety of other animals in the group. जो भी लीडर होता है ग्रुप का वो दूसरे एनिमल की सेफ्टी के बारे में देखता है. Female elephants and their cows live together and move around in a group. फीमेल एलिफेंट्स अपने काउस मतलब काफ मतलब उनके जो बच्चे होते हैं उनके साथ रहते हैं और उनके साथ ही कहीं पर भी जाना हो तो वो लोग जाते हैं. मेल एनिमल्स थोड़े टाइम के बाद रहते हैं, थोड़े टाइम के लिए अपने फैमिली के साथ रहते हैं, फिर वो सॉलिटरी हो जाते हैं. सॉलिटरी हो जाना मतलब वो अकेले रहने चले जाते हैं. सॉरी. Snakes can feel the movement through the vibration made on the ground. स्नेक्स के पास ईयर्स नहीं होते तो उनको पता कैसे चलता है, वो कैसे फील करते हैं. वो ग्राउंड पे जब भी कोई चलता है या कोई एनिमल आता है तो उससे जो वाइब्रेशन होता है उससे स्नेक्स को फील होता है. द रेयरिंग ऑफ हनीबीज इज कॉल्ड एपीकल्चर. जो लोग हनीबी को पालते हैं उसको हम एपीकल्चर कहते हैं. अंडरस्टूड? चलो, विल मूव टू द नेक्स्ट. नेम्स ऑफ द फॉलोइंग. ये ग्रुप को हम क्या कहेंगे, ये एनिमल्स के ग्रुप को क्या कहेंगे वो हमें लिखना है. ओके, द ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड शॉल. ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स हर्ड. ग्रुप ऑफ बीज स्वार्म. ग्रुप ऑफ वुल्व्स पैक. ग्रुप ऑफ शीप फ्लॉक. दिस इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट animals. Okay, we'll move to the next question which is true or false. First, true or false. Animals move around in groups to find food and water. True. Animals एक साथ में food और water ढूंढने के लिए जाते हैं. Yes, true.
Musk oxen have short, thick mass of soft hair. Musk oxen होता है उसके बहुत ही short hair और बहुत soft hair होते हैं? नहीं, उसके बहुत ही thick and बहुत ही long hair होते हैं. So this is false. Next, polar bears have large ears. False. पोलार बेस के स्मॉल एंड राउंड ईयर्स होते हैं, उसके लार्ज ईयर्स नहीं होते. सो फॉल्स. नेक्स्ट, एनिमल्स सच एज स्क्विरल्स एंड रैबिट आर फ्रेंडली टू अस. फॉल्स. यहाँ पे जो 5 लिखा है ना बेटा, वो मिस्टेक से लिखा गया है, वो कंसिडर मत करना. ये पूरा सेंटेंस है, एनिमल्स सच एज स्क्विरल्स एंड रैबिट्स आर फ्रेंडली टू अस. फॉल्स. एनिमल्स स्क्विरल एंड रैबिट्स होते हैं वो फ्रेंडली नहीं होते हैं, वो शाय एनिमल्स होते हैं. अगर हम उसके पास जाएंगे तो वो तुरंत ही भाग जाते हैं. सो दे आर नॉट अ फ्रेंडली एनिमल्स. रेमोरास अटैच देमसेल्व्स टू शार्क्स एंड अदर लार्ज मरीन एनिमल्स. ट्रू. रेमोरास अपने आप को दूसरी शार्क फिश से या कोई भी मरीन एनिमल से अटैच कर लेते हैं और फिर उनके ऊपर जो भी इंसेक्ट्स को भी होता है उसको खा जाते हैं. Yes, रेमोरास आल्सो नोन एज अ सकर फिश. सक करना मतलब जो भी उसके ऊपर बॉडी के ऊपर होता है उसको निगल जाना, चूस लेना. तो रेमोरास ऐसा ही करते हैं. आई होप ये एक्सरसाइज आपको ठीक से समझ में आ गई होगी और आपको टेक्स्ट बुक पे भी कंप्लीट करना है और क्लास वर्क पे भी 1 टाइम लिखना है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स. ओके, learn the question answers properly with the correct spellings. Question 1. Why do some animals move in a groups? कोई एनिमल्स ग्रुप में क्यों मूव करते हैं? The animals stay safe from them predators if they move in a large group. एनिमल है ना अपने प्रेडेटर से सेफ रहते हैं अगर वो ग्रुप के साथ मूव करे तो. They also move around in groups to find food and water and share the same as a group. Yes, वो साथ में रह के फूड भी फाइंड करते हैं, वाटर भी फाइंड करते हैं और फिर वो फूड वाटर दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं. By moving in groups, the animals also train their young ones. ग्रुप के साथ रह के वो अपने यंग वंस को भी ट्रेन करते हैं, उनको भी बड़ा करते हैं. तो इसीलिए कोई एनिमल्स होते हैं जो ग्रुप में रहना ज्यादा पसंद करते हैं. क्वेश्चन 3. What is the role of the leaders in a group of animals? जो भी ग्रुप होता है एनिमल्स में, उसमें लीडर का रोल क्या होता है? The leader of the group looks after the safety of other animals in the group. जो भी लीडर्स होते हैं वो दूसरी एनिमल्स की सेफ्टी देखते हैं, उसका ख्याल रखते हैं. अगर कोई भी उसको लगे, कोई कहीं पर भी डेंजर लगे तो वो लीडर्स उनको बचा लेते हैं, उनको सेफ कर लेते हैं. तो यही एक ग्रुप में लीडर का काम होता है. ओके, आर यू गेटिंग मी प्रॉपर्ली? समझ में आ रही है बात? चलो, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. How is honey stored in a beehive? beehive में हनी कैसे स्टोर होता है, वो पूरी प्रोसेस हमें दिखानी है कि beehive में हनी किस तरह से बनता है. The bees suck the nectar from the flowers with their long, thin, tubular mouth part known as proboscis. बीज होते हैं वो फ्लावर्स में से नेक्टर को सक करते हैं अपनी लॉन्ग ट्यूबुलर माउथ पार्ट से. जो उनकी लॉन्ग ट्यूबुलर माउथ पार्ट होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोबोस्किस. उससे वो फ्लावर में से नेक्टर को सक कर लेते हैं. द नेक्टर इज स्टोर्ड इन द हनी स्टमक. फिर हनी बीज होती है जो वो नेक्टर होता है उनके बैग, मतलब उनके वॉर्म में एक छोटा सा बैग होता है जिसको वो हनी स्टमक कहते हैं. उसके अंदर वो नेक्टर को स्टोर कर लेती है. दिस नेक्टर इज लेटर स्पिट आउट इनटू द comb of the hive which honeybees then seal with the wax produced in their own bodies. फिर वो लोग एक कोम बनाते हैं, हनी बी में, हनी हाइव में एक कोम बनाते हैं जिसमें वो अपना जो भी नेक्टर अपने स्टमक में उन लोगों ने स्टोर किया होता है ना, वो लोग स्पिट कर देते हैं, मतलब वो निकाल देते हैं वो कोम में और फिर अपने बॉडी में से एक प्रोड्यूस करते हैं, वैक्स जैसा प्रोड्यूस करते हैं, उससे वो कोम को सील कर देते हैं.
ग्रेजुअली दिस नेक्टर टर्न्स इनटू हनी। फिर धीरे धीरे करके थोड़े टाइम में जो ये नेक्टर होता है, जो सील में पड़ा है, जो कोम जो ऊपर से सील किया गया है हनी बीज से, वो धीरे धीरे नेक्टर बीज में हनी में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आपको ये आंसर ठीक से समझ में आया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू द स्मॉल ईयर्स ऑफ पोलार बेयर्स हेल्प देम? पोलार बेयर के स्मॉल ईयर्स होते हैं, वो उसको कैसे हेल्प करते हैं? द स्मॉल ईयर्स ऑफ पोलार बेयर्स हेल्प देम नॉट टू लूज बॉडी हीट इन द कोल्ड क्लाइमेट ऑफ द आर्कटिक रीजन। पोलार बेयर के जो ईयर्स होते हैं ना, वो उनकी बॉडी को हमेशा हीट रखते हैं, और वो हीट ना चली जाए वो देखते हैं, क्योंकि पोलार बेयर मोस्टली कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं। आर्कटिक रीजन है जो हमेशा स्नो से भरा हुआ होता है, वहां पे रहते हैं। तो पोलार बेयर अपने उनके बॉडी को हीट रखने की, गर्म रखने की में हेल्प करता है। Question 5. How do a cattle, egret and a cow help each other? Cattle, egret और cow एक दूसरे को कैसे help करते हैं? Cattle, egret sits on the back of the cow and feed the insects found on the body of a cow. कैटल एग्रेट होता है, वो काउ के बैक पे बैठ जाता है, और उसकी काउ के बैक के ऊपर, उसकी पीठ के ऊपर जो भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उसको कैटल एग्रेट खा जाता है, निकल लेता है। When this bird sense any danger, they fly away to make a shrill call and alert the animals on whose back they ride. फिर उनको अगर कैटल एग्रेट को कोई डेंजर लगे कि कोई वाइल्ड एनिमल आ रहा है या कोई हंट के लिए आ रहा है, तो वो एकदम से वो जिसके ऊपर बैठे होते हैं ना, जो भी एनिमल्स के ऊपर बैठे होते हैं, वहां से फ्लाई कर देते हैं, या तो फिर शील कॉल मतलब ऐसी आवाज करते हैं जिससे जिसके ऊपर वो बैठे हैं, जो भी एनिमल्स के ऊपर बैठे हैं, उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई डेंजर है, यहाँ पे कोई वाइल्ड एनिमल या कोई हंटिंग के लिए आ रहा है। इस तरह से कैटल एग्रेट और काव एक दूसरे को हेल्प करते हैं। सो आई होप पूरी एक्सरसाइज आपको ऑब्जेक्टिव, बज़वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर्स, then fill in the blanks, names, everything, question answer सब आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। यही सारी बात वन टाइम क्लास वर्क में लिखे और टेक्स्ट बुक में भी कंप्लीट कीजिए। और वन मोर थिंग, राइट विथ अ वेरी वेरी नीट हैंड राइटिंग, टीचर को क्लियरली दिखाई दे उस तरह से लिखना है, उसी तरह से पिक्चर भी लेना है। ओके चलो, एंड शो मी ऑन अ व्हाट्सएप वेरी सून। ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके मुझे तुरंत ही आप व्हाट्सएप पे भेज दोगे। अंडरस्टूड? चलो, आई गेट यू अगेन इन द नेक्स्ट पीरियड। टिल देन, बाय बाय।